एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ, ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ
तेरा गावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा। नानक प्रभ शरनाई, मुख निंदक कै छाई, मुख निंदक कै छाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। निंदो 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 मोको लोग निंदो, 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 निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो।
निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सुखदेव मुनि तप कर रहा है। इतना घोर तप किया, इतना घोर कि कई साल समाधि नहीं खुली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल। इतिहास में लिखा है कि उसके सर के ऊपर पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना तप किया, इतना तप किया, पर प्राप्ति नहीं हुई। आखिर में उसके पिता ने उसे समझाया कि जाकर राजा जनक को अपना गुरु धारण कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि चल पड़ा। राजा जनक के दरबार में गया। क्या देखता है कि राजा जनक दरबार में बैठा है, शान शौकत, स्त्रियां नाच रही हैं, महल सजा पड़ा है। वो हैरान हुआ कि मैं जपी तपी, मैं त्यागी, और मैं इसे गुरु धारण करूं जो मोह माया में फंसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के बड़ा नाम सुना था राजा जनक, और ये तो महलों में बैठा है राजाओं के जैसे। वापस आ गया, अंदर नहीं गया, देखकर वापस आ गया। एक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पर कुछ ऋषि मुनि बैठे थे, उनके बीच में बैठ गया और लगा निंदा करने राजा जनक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि राजा जनक ऐसा है, राजा जनक ऐसा है। नारद मुनि जी ने उसे देखा निंदा करते हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक मजदूर का,
और नदी किनारे पर जाकर मट्टी उठा उठाकर नदी में डालने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि उसे देख रहा है कि तकरीबन 1 घंटा हो गया है, ये आदमी मिट्टी उठाता है नदी में डालता है। सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया, पास में जाके पूछता है ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? और नारद मुनि जो ब्राह्मण देवता के भेष में वहां पर था कहने लगा मैं नदी में पुल बना रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहने लगा तुझे इतनी भी अक्ल नहीं, ऐसे मिट्टी डालने से कोई पुल बन जाता है क्या? 1 घंटा तूने अपना व्यर्थ गवा लिया, देख देख कर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं टोकने आ गया तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि कहने लगा तुझसे मेरा 1 घंटा व्यर्थ की मेहनत की गई, तुझे देखी नहीं गई कि मैंने 1 घंटा मेहनत की व्यर्थ चली गई। जो तूने सारी जिंदगी तप किया वो तू राजा जनक की निंदा करके सब गवा रहा है, वो तुझे नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को समझिए साध संगत जी। बहुत सारे लोग महापुरुषों के पास जाते हैं, मैं महापुरुषों की दास ने संगत की, उनके पास आके जब ये कहते थे ना कि हमने इतना पाठ किया है, हम अमृत वेले भी उठते हैं, नाम भी जपते हैं, पर हमारा ये काम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें अवस्था नहीं मिली। तो महापुरुषों का सबसे पहला सवाल होता था कहीं निंदा तो नहीं करते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा, ये जो आप शब्द श्रवण कर रहे हो एक एक पंक्ति अनमोल है। ये प्रकरण बहुत ही जरूरी है साध संगत जी, बहुत ही जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई देगा, साथ में कहेगा इन चीजों का परहेज करना, और आखिर में एक बार ये बात जरूर कहता है कि परहेज दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परहेज दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार गुरबाणी में एक चीज की जो सख्ताई से मनाई की गई है, अत की सख्ताई से, वो है निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे करने में हमें बहुत रस आता है, बहुत। हम बहाना ढूंढते हैं कोई मिले सही, और फिर किसी तीसरे की बैठ के निंदा करते हैं जिससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी इस चीज की इतनी सख्ताई से मना करती है साध संगत जी, इतनी सख्ताई से कि सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में इतनी सख्ताई से तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भी मनाही नहीं की गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा है श्रवण कीजिए, बाणी क्या कहती है। जे ओह 68 तीरथ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। अगर कोई 68 तीर्थों का स्नान कर ले, ध्यान देना बानी कह रही है, अगर कोई 68 तीर्थों का स्नान कर ले, अगर कोई जितने भी चारों धाम हैं, चारों सृष्टि में जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, सबके जा जाकर दर्शन कर ले, अगर कोई इतना पुण्य कमा ले कि जगह जगह पर उस जमाने में कुएं खोदे जाते थे प्यास बुझाने के लिए, हर जगह पर कुएं खुदवा दे ताकि लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं, इतने पुण्य कमा ले, पर अगर ऐसा आदमी भी अगर किसी की निंदा करता है तो उसका ये सब कुछ किया हुआ खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे ओ 68 तीर्थ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जे ओह अनिक प्रसाद करावे। पूम दान शोभा बहु मंडप लावे। अपना बिगार बिहाना सांडे। कर निंद बहु जोनी हांडे। अगर किसी में इतने गुण हैं, इतने गुण बड़े बड़े कि वो अपना बिगाड़ कर दूसरों का संवारता है, हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी में इतने बड़े गुण हैं कि अपनी सारी जायदाद बेचकर वो समागम कराता है, संगत को नाम जपाता है, सारा कुछ अपना बेच देता है, गुरबाणी कहती। पर अगर ऐसा इंसान भी अगर किसी की निंदा करता है तो उसे भी जन्म मरण उसका कटेगा नहीं, आना ही पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्रकरण दास ने तकरीबन 2-3 साल पहले लिया था और बेनती करता था बार बार संगत से कि इस प्रकरण को बार बार सुना करो, ये प्रकरण बहुत जरूरी है। ये एक डोज है जो मिलता रहे तो आदमी निंदा से बचता रहेगा। क्योंकि अगर भूल जाते हैं तो बाबा जी के वचन है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के, कोई 2.5 घंटे 3 घंटे अमृत वेला संभाल ले। अब रास्ते में वापस जाते हुए कोई 5 मिनट 10 मिनट किसी की निंदा कर दे, सारा की हुई कमाई खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम सब अक्सर यही करते हैं। ये परहेज नाम जपने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाम जपा हुआ तब ही सार्थक होगा अगर निंदा का परहेज होगा। बहुत जरूरी है। फोन करते हैं निंदा, 2 लोग आपस में मिले, जो तीसरा नहीं बैठा उसकी निंदा, जिससे कुछ लेना देना भी नहीं है उसकी भी निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर कहते हैं कि हमारा नाम जपा था, अमृत वेले भी उठे थे, हमारा काम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है नाम जप जप कर अमृत वेले उठकर एक एक बूंद करके हम घड़ा भर रहे हैं पुण्यों का। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 छोटे छोटे छेद हैं कि साथ साथ में ये सब गिरता रहता है, भर भी रहे हैं, थोड़ा गिर भी रहा है। पर महापुरुष समझाया करते थे निंदा तो जैसे घड़ा नीचे से टूटा ही पड़ा है, ऊपर से डाला नीचे से खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या है ये निंदा? गुरु मेहर करे हमें सुमत बख्शे, ये बात हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। क्योंकि मैंने दास साध संगत जी खुद पर ध्यान दिया है कि कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं और निंदा कर बैठता हूं, फिर माफी मांगता हूं गुरु से कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर बैठा मैं। क्योंकि सारी की हुई मेहनत खत्म। ये मन को समझाना है निंदा क्या चीज है। आज अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, गुरु मेहर करे, तो हमारी की हुई कमाई बच जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़े। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि जिसकी निंदा हो रही होती है उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो लोग निंदा कर रहे होते हैं उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास एक आदमी आया, कहने लगा फलाना आदमी आपकी बहुत निंदा करता है, वो नरकों में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बाबा जी कहने लगे वो नरकों में जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तू जरूर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तो उसकी निंदा कर रहा है। वो अगर निंदा कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, तू उसकी निंदा करके अपने कर्म क्यों खराब कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दृष्टांत है बड़ा प्यारा। एक राजा हर रोज 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया करता था। अब जहां पर भोजन बन रहा था खुले मैदान में, भोजन तैयार हुआ, ब्राह्मणों ने खाया, 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाहाकार मच गया नीचे कि ये क्या हो गया। नीचे हाहाकार मच गया, ऊपर स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। 100 ब्राह्मणों की हत्या, एक ब्रह्म हत्या का पाप भी इतना बड़ा होता है, 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इसका दोषी कौन। विचार चल रहा है, धर्मराज बैठा है, सब बैठे हैं। एक ने कहा कि एक पक्षी उड़कर जा रहा था, वो जहरीला सांप लेकर जा रहा हुआ था, मरा हुआ। उस पक्षी के पंजे में से वो सांप छूटा है, उस खाने में गिरा है, वो खाना जहरीला हुआ है जो ब्राह्मणों ने खाया और ब्राह्मण मर गए। तो इसलिए दोष उस पक्षी का है, ये सारा पाप उस पक्षी के ऊपर डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा पक्षी का क्या दोष, वो तो अपना भोजन लेके जा रहा था, उसने जानबूझकर नहीं गिराया। दूसरे ने कहा फिर सांप का दोष है, वो खाने में गिरा क्यों। धर्मराज कहने लगा सांप का क्या दोष, सांप तो मरा पड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर सब कहने लगे कि राजा का दोष है। धर्मराज कहने लगा अगर राजा का दोष होता वो तो रोज भोजन खिलाता है, उसे अगर पता होता भोजन जहरीला है वो ना खिलाता। विचार कर रहे हैं दोष किसका है, आखिर में विचार किया नीचे चलते हैं, नीचे जाके पड़ताल करते हैं। धर्मराज और उसके कुछ लोग अदृश्य रूप में राजमहल के बाहर खड़े हैं, सोच रहे हैं कि दोष किस पे डालें, पता करें। वहां से 2 लोग गुजरे, साथ संगत जी 2 लोग गुजर रहे थे राजमहल के बाहर से। एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा क्या राजा आज भोजन खिलाएगा। वो कहने लगे हाँ हाँ जा, तू भी जा भोजन खा, 100 ब्राह्मण पहले मर गए हैं, तू भी जाके मर, राजा जहरीला भोजन खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा ये सारे 100 ब्राह्मणों के पाप मरने का पाप का दोष इन दोनों आदमियों पर डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चित्रगुप्त कहने लगे इन्होंने क्या किया। धर्मराज कहने लगा इन्होंने वो काम कर दिया जो शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल मना है, इन्होंने राजा की निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन 2 लोगों को राजा से कुछ लेना देना नहीं था, पर निंदा करके 100 ब्राह्मणों का पाप अपने सर पर ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें भी पूरे शहर में क्या हो रहा लेने देना कुछ नहीं होता, पर पूरा दिन बैठ के दूसरों की निंदा करते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है साथ संगत जी, और ये कोई दृष्टांत कोई अतकथनी नहीं है। गुरबानी बार बार इस बात को प्रमाणित कर रही है। आप जो शब्द श्रवण कर रहे हो भगत कबीर जी का है। कबीर जी कह रहे हैं निंदो, लोग मेरी निंदा करो, क्योंकि आप लोग निंदा करोगे तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आप लोग नरकों में जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें समझाने के लिए कबीर जी हमें नरकों में नहीं भेजना चाहते, पर हमें समझाने के लिए कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़े। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको निंदो, निंदो निंदो मोको निंदो। निंदा होती क्या है, 2 मिनट इस पे विचार कर लें, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। यह प्रकरण दास पहले भी 3 साल पहले ले चुका है, पर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि फलाना आदमी गलत है। एक लड़की का मुझे मैसेज आया,
कि मेरा कहीं पे रिश्ता होने जा रहा है, वो लड़का सही नहीं है, अगर मैं भी जाके अपनी माँ को बताती हूँ तो ये निंदा तो नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे निंदा से डर लगता है, आप कहते हो निंदा करनी नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से समझ ले, निंदा होती क्या है। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, मेरे हाथ में एक फूल है, गुलाब का फूल, उसके नीचे कांटे भी हैं। मैं कहता हूं कि ये फूल बड़ा खूबसूरत है, तो ये सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निंदा नहीं है, गुलाब का फूल खूबसूरत होता है। मैं कहता हूँ कांटे चुभ रहे हैं, ये सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं कहूँ ये फूल बदसूरत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये निंदा है। क्योंकि गुलाब का फूल बदसूरत नहीं होता, खूबसूरत होता है। अब मैं कहूँ ये कांटे बड़े प्यारे हैं, चुभते नहीं, ये खुशामद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फूल को फूल कहना निंदा नहीं है, फूल को कांटा कहना निंदा है। ध्यान से समझना इस बात को। सबसे बड़ी बात, सारी बात यहां पर मन की है। बाबा जी वचन किया करते थे, निंदा क्या होती है इसको अच्छे से समझ लीजिए। 4 लोग बैठे हों, हम किसी का नाम लेके उसके अवगुण इसलिए बताएं, बढ़ा चढ़ाकर उसके अवगुण बताएं, केवल इसलिए कि उस आदमी को 4 लोगों की नजरों में गिरा सकें, यह है निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु अंदर की भावना देखता है, हमें पता होना चाहिए निंदा क्या है। अगर हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं 4 लोगों के बीच में, और हमारी पीछे मंशा ये है कि उस आदमी की क्रेडिबिलिटी हमने गिरानी है 4 लोगों के बीच में, तो ये है निंदा। और अगर हम उसके बारे में कोई, जैसे किसी रिश्ता हो रहा है, वहां पर सच्चाई बतानी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने उसका निंदा करना चाहते हैं, उसका नुकसान करना चाहते हैं, पर किसी को बचाना चाहते हैं, यह निंदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बुरे लोगों की निंदा करना गलत काम नहीं है, पर वाणी कहती है, क्या कहती है, श्रवण कीजिए। निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले तिना निंद का, नर के कोर पवन। गुरु महाराज फरमाते हैं, निंदा भली किसे की नाही, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, निंदा से बचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा है तो उसके कर्म उसके साथ, तुम निंदा करके उसका वजन अपने सर पर क्यों उठाते हो। बाबा महार नाम सिंह जी कहा करते थे, निंदा करना मानो किसी का मल मूत्र साफ करने के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसके किए हुए पापों का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, और हमारे किए हुए पुण्य उसको ट्रांसफर हो जाते हैं केवल निंदा करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन, मुंह काले तिना निंद का, नर के घोर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी सारे शहर में इतनी उस्तत होने लगी, इतनी उस्तत होने लगी, उनके दर्शनों के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। दर्शनों के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। अब कबीर जी को अपनी भक्ति करने का समय नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान हो गए। क्या किया, एक बोतल में इस रंग का पानी भरा जैसे शराब है, और एक शराबी की एक्टिंग करते हुए पूरे शहर में घूमने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ में बोतल पकड़ी हुई है, हाथ में बोतल पकड़ी हुई है और घूम रहे हैं शराबी के जैसे। सारे शहर में निंदा होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई दर्शनों के लिए नहीं आ रहा। कबीर जी अपना लिव जोड़ के बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम लोग निंदा से घबरा जाते हैं। हमें पता चले फलाना आदमी हमारी निंदा कर रहा है, हमारा उसे देखने का नजरिया ही बदल जाता है कि जैसे हमारा दुश्मन है।
कबीर जी रोने लगे। एक दिन कबीर जी से सवाल किया लोगों ने, आपको पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया, हाथी के आगे संगल बांधकर फेंक दिया गया, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आज क्यों रो रहे हो? कबीर जी कहने लगे, एक आदमी जो मेरी बहुत निंदा करता था वो मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मेरे मैले कपड़े कौन धोएगा? मैं जो पाप करता था वो धो देता था, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नाम जपना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे नहीं पता स्त्री का हाथ होता है या नहीं, पर इस बात की 100% गारंटी है, एक कामयाब आदमी के पीछे निंदकों का हाथ जरूर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लोग जितनी उसकी निंदा करेंगे वो उतना आगे बढ़ेगा, जितनी उसकी निंदा होगी उतना वो आगे बढ़ेगा। ये गुरबानी इस बात को प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको निंदा। अब हमारी कोई निंदा कर रहा हो और हम खुश हो रहे हैं कि हमारी निंदा हो रही है, इसको भी गहराई से समझ लेना। काफी समय पहले की बात है, एक औरत मुझे मिली, कहने लगी, भाई साहब आप लोगों को क्या सिखाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा क्या हुआ? सूर्य चौक पे कहीं जा रहा था, वहां पकड़ लिया मुझे उसने। कहने लगी, एक आदमी मेरे 2.5 लाख रुपए खा गया है, ब्याज पे लिए थे, वापस नहीं दे रहा, और जब जाके पूछती हूँ वापस क्यों नहीं दे रहा? कहने लगा, इसलिए वापस नहीं दे रहा हूँ, तू मेरी निंदा करेगी, मेरा भला हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग अपने मतलब की बात कैसे घुमा लेते हैं। निंदा क्या होती है? निंदा वो आपका भला करती है जो काम आपने किया ना हो। मानो आपने चोरी नहीं की है, लोग कह रहे हैं आप चोर हो, तो आपकी निंदा जो कर रहे हैं आपको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपने चोरी की है, फिर आपकी निंदा हो रही है, जो निंदा कर रहे हैं उनका नुकसान तो हो रहा है, पर आपका कोई फायदा नहीं है उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निंदा वो हमारी फायदेमंद है जो काम हमने किया ना हो, जो झूठा दोष हम पर लगा हो। बात समझ में आ गई सबके? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत समझना कि जो काम हमने किया है उसकी निंदा हो रही है फिर भी हमारा भला है, नहीं। यहां पर एक घटना है, गुरबानी में दर्ज है। एक राजा हुआ है अजय, बड़ा अहंकारी राजा हुआ है। एक बार अपने घोड़े के तबेले में खड़ा था, एक साधु आ गया, कमाई वाला साधु पूरन। भिक्षा मांगने लगा, राजन भिक्षा दे दे। राजा कुछ लोगों से बातें कर रहा था, ध्यान नहीं दिया, इसने वापस कहा भिक्षा दे दे। 2-3 बार कहा, राजा चिढ़ गया और उसने जो घोड़े की लिद पड़ी थी, लिद, वो उठाकर एक मूठ भरकर, ऐसे हाथ भरकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि जा ये ले जा भिक्षा। उस साधु ने वो भिक्षा देखी और कहने लगा, राजन तेरी दी हुई भिक्षा प्रफुल्लित हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समय बीत गया, समय बीत गया। एक बार राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा है, शिकार खेलने गया। क्या देखता है, एक साधु की कुटिया है, पर कुटिया के पास में एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है लिद का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ ले।
जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा अब उतरे पार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा अब उतरे पार। निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो। अजय राजा जब गुजर रहा था, कुटिया के पास देखा एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है घोड़े की लिद का। हैरान हुआ, आसपास कोई घोड़ा नहीं है, कोई तबेला नहीं है। अंदर चला गया कुटिया में। अंदर एक महात्मा बैठा है, नाम जप रहा है। उससे पूछता है, ये बाहर लिद का पहाड़ क्यों रखा हुआ है? घोड़े तो है नहीं आपके पास। वो महात्मा, वो साधु कहने लगा, राजन पहचाना नहीं मुझे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं वही साधु हूं जो तुझसे भिक्षा मांगने आया था और तूने घोड़े की लिद भिक्षा में दी थी। राजा कहने लगा, हाँ मुझे याद आ गया। तो साधु कहने लगा, ये तेरी दी हुई भिक्षा है जो प्रफुल्लित हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजय राजा पूछने लगा, इसका भाव क्या है? साधु ने समझाया, जो भी हम दान देते हैं वो प्रफुल्लित होता है। तूने मुझे घोड़े की लिद दान दी है, ये बढ़ रही है। जब तू मरकर ऊपर जाएगा, जमदूत पकड़ पकड़ कर तुझे लिद खिलाएंगे, तुझे खानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा, महापुरुषों के मुझे बख्श दो, मैं अहंकारी, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया। मैं ये घोड़े की लिद कैसे खाऊंगा? मैं नहीं खा सकता, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। साधु का मन पिघला, कहने लगा, राजन अपने किए हुए कर्म झेलने ही पड़ते हैं। पर राजा रोने लगा, चरण छोड़े ही ना। तो साधु ने कहा, एक तरीका है, ध्यान देना साध संगत। साधु कहने लगा, एक तरीका है, ये सारे तेरे पाप मिट सकते हैं, सारी लिद खत्म हो जाएगी। पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा, मुझे ये लिद का पहाड़ ना खाना पड़े, मुझे जो भी काम हो मैं करूंगा। तो साधु ने कहा, कोई ऐसा काम कर जिससे सारा राज्य तेरी निंदा करने लगे, पर एक शर्त है, वो पाप तूने किया ना हो, लोगों को लगे कि तूने वो पाप किया है पर तूने किया ना हो, और लोग सारा राज्य तेरी निंदा करें, एक दिन में ये लिद का पहाड़ खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजय राजा रात के अंधेरे में कोठे में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोठे के बाहर बैठा रहा, अंदर नहीं गया। सुबह इस ढंग से कोठे से निकला जैसे लोगों को लगे कि रात को कोठे में बिता के आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने देखा, सारे शहर में निंदा होनी शुरू हो गई, राजा अधर्मी, राजा रात को कोठे में बिता के आया है। कई प्रकार की निंदा होने लगी, पर राजा मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब शाम को वहां से गुजरा, क्या देखता है? लिद का पहाड़ खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर जाकर देखा कि थोड़ी सी लिद बची हुई है। धन्यवाद किया महापुरुषों का और पूछा कि थोड़ी सी लिद क्यों बची है? तो महापुरुषों ने कहा कि मूल किसी चीज का खत्म नहीं होता, जो तूने मूल दिया था वो तो तुझे खानी ही पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चाहे सब्जी में मिला के खा, चाहे चूरन बना के खा। अब राजा वो लिद खा रहा है रोज थोड़ी थोड़ी और रो रहा है, और ये पंक्तियां गुरबाणी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। और जैसो रोवे भिखिया खाए, और जैसो रोवे भिखिया खाए, ऐसे दरगह मिले सजाए, ऐसी दरगह
ले सजाए। अब इसमें ज्ञान क्या है इस घटना में, ध्यान से समझना। लिद का पहाड़ खत्म कैसे हुआ? लोगों ने निंदा की। इसका भाव क्या है? जिन जिन लोगों ने इसकी निंदा की वो लिद उनके हिस्से में आ गई, अब उन्हें खानी पड़ेगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा से कुछ लेना देना नहीं, उसके अपने कर्म है, पर जो लोग उसकी निंदा करते रहे उसके पाप के भागी बनते गए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाप किया भी नहीं है पर पाप के भागी बन गए। और आज के संसार में व्हाट्सएप में क्या होता है? निंदा। हैरानी की बात तो अब ये हो गई है साथ संगत जी, राजनीति में तो निंदा चलती ही है, सब करते हैं। हद तो ये हो गई अब गुरुद्वारों में निंदा शुरू हो गई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां पर जाके हमने ये सीखना था कि निंदा नहीं करनी, वहीं पर बैठ के हम अगर निंदा करने लग गए तो फिर कहां पे जाके बख्शाएंगे? महापुरुष वचन किया करते थे, बाहर किए हुए पाप गंगा में जाके धो लोगे। अरे जो पाप गंगा में जाकर करोगे वो कहां धोओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सुमत बख्शे, सुमत बख्शे। ये परहेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। नाम जपना उस ही का सफल है जो निंदा से बचे। मैं तो साथ संगत सबसे हाथ जोड़कर बेनती करूंगा, कोई भी आदमी आपके पास आके किसी और की बात करने लगे, एक बड़ा प्यारा ढंग है निंदा से बचने का। जो आदमी सामने नहीं है उसकी बात ही मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, निंदा करो पर मुंह पे करो। मुंह पे की हुई निंदा, सच बोला हुआ सामने वाले को बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, पर हम उल्टा करते हैं, मुंह पर खुशामद करते हैं। जैसे ही आदमी की पीठ घूमती है निंदा करनी शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु दास महापुरुषों की संगत की है, महापुरुषों का जीवन देखा है। वो मुंह पर निंदा करते थे और पीठ पीछे बढ़ियाई करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीठ पीछे उस्तत करते थे कि ये सेवादार बड़ा अच्छा है, पर सामने से कहते तू सही ढंग से सेवा नहीं करता, अच्छे से कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कहीं अहंकार ना आ जाए। उस्तत निंदा दो त्यागे, ये दोनों चीजें छोड़नी है। जितनी बुरी पीठ पीछे निंदा है उतनी ही बुरी मुंह पर की हुई उस्तत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब हम किसी की मुंह पर उस्तत करते हैं उसके अंदर अहंकार भर देते हैं, और जब किसी के अंदर अहंकार भर जाता है वो किसी लायक नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कीर्तनिया हो, कीर्तन करता हो, अहंकार से भरा हो, किसी को पसंद नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई भी गुण इंसान के अंदर हो, निम्रता उसका गहना होती है, निम्रता। और अहंकार अगर हो साथ में तो गुण भी अच्छा नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई चतर सिंह जी मुझे शिक्षा दिया करते थे, कहते थे ये जो तू साथी रखता है ना अपने साथ, जितने भी गाने वाले चुन के रखा कर। अगर इनमें कोई अवगुण है कोई बात नहीं, अवगुण सब में होते हैं। शहद की मक्खी मत बनना गंदगी की, जो एक अवगुण को देख के। मक्खी का क्या काम है? पूरा स्वस्थ शरीर है, अगर कहीं पे छोटा सा जख्म है वहीं जाकर बैठेगी। हमारी हालत वैसी हो चुकी है, आदमी में गुण भरे पड़े हैं, पर एक अवगुण है उसे लेकर बैठ जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो अवगुण सबके अंदर है। कहते थे बाकी सारे अवगुण हो कोई बात नहीं, झेल लेना, पर अगर अहंकार आ जाए तो हाथ जोड़ देना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार नहीं भाता, अहंकार आने से कला ही नहीं रहती। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा। शेख सादी बचपन में हज की यात्रा पे गया, अमृत वेला हुआ, सब सोए रह गए। हजी जो जा रहे थे थके हुए थे। शेख सादी और उसके पिता, उन्होंने किसी प्रकार 3 बजे उठकर नमाज अदा की और अमृत वेला संभाल लिया। जब समाप्ति हुई, शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं, शेख सादी कि मैंने पिताजी से बात कही, कहा कि हम कितने अच्छे, हमने अमृत वेला संभाल लिया और ये बेचारे सोए रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमृत वेला नहीं संभाल सके। तो कहने लगे मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे एक बात कही कि अच्छा होता तू भी सोया रह जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अगर सोया रह जाता मुझे इतना दुख नहीं होता, तूने इनकी निंदा करके अपना किए हुआ सारा नेम भी गवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु ने अमृत वेला बख्शा है साथ संगत जी, पर अगर इसी अमृत वेले का अहंकार हो गया ना, हम लोगों में बैठकर बोलने लग गए कि मैं तो सुबह 3 बजे उठता हूँ, मैं तो सुबह 3 बजे उठता हूँ, बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन अगले दिन ही नहीं उठ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इम्तिहान पड़ जाएगा, नहीं उठ पाएगा। कोई पूछे अमृत वेले उठते हो तो हाथ जोड़ के यही कहना गुरु नानक उठा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस निंदा से बचो साथ संगत जी। गुरु मेहर करे हम सबको सुमत बख्शे। इस निंदा से बचना बहुत ही जरूरी है, नहीं बचे सारा जप तप सारे गुण खत्म हो जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लेके जा पाएंगे, उल्टा दूसरों का किए हुए पाप अपने सर पर उठा के लेके जाने पड़ेंगे केवल निंदा के कारण। गुरु नानक पातशाह ने जो भाई मर्दाना जी को अपने साथ रखा तो 3 शर्तों में से एक शर्त थी कि किसी की भूल कर भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी। और आखिर में एक बात कही थी कि अगर किसी की भूल कर निंदा हो जाए तो गुरु से माफी मांग लेना, पर किसी संत की किसी भी प्रकार गलती से भी निंदा मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखमणि साहिब जी की पूरी एक अष्टपदी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संतों के निंदकों पर लिख दी है, समझाने के लिए कि जो संतों की निंदा करेगा उसका क्या हाल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, 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 निंदो 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 मोको लोग निंदो। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूबा हम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं जो पर जाओ सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिए चुन सतर हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रगासा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह कर्क करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोझे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप आपनी बुध है जेती तो पेन पेन तो तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीनी मुझ खान बहु रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा समट प्यो संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहारो आके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोग ते ले बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महल्ला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद।
ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਸ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਦਿਸਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਟੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਨਦਵਾਜੇ ਮਨ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਟੇ ਜਾਨੀ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ 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 ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।